we have seen atmospheric pressure and precipitation at the same time. P for pressure, P for precipitation, P for prevailing wind. Understood it? And then prevailing wind in the southern hemisphere causes lots of killer. So next one that we are going to see, what is the supply of fresh water. And it can be through the, I said that, melting of glacier, and then I said melting of glacier, and then you know that rainfall, and then I said a rainfall already we have seen, precipitation, yes. So melting of glacier, if I say that, if we'll go into the Europe, and in the Europe this is in Norway, and Norway से तो आपको पता है Norwegian warm current goes, so there will be the glacier has already melted, so there is no warm, it is this reason. But Finland and Sweden and Finland will have what? Glaciers, और इसके मेल्ट होने से यहाँ पे क्या आ जाता है? Fresh water. And then Baltic Sea, what I said that? Baltic Sea salinity, ऐसे ओशन की कितनी होनी चाहिए? Tell me. 35. But due to melting of glacier, Baltic Sea salinity reached 22 parts. समझ में आ गया? From where? Finland and Sweden. That these are the two regions are what is the melting of glacier contributing what is the fresh water. Glacier में नमक होता है? नहीं, तो वो तो completely fresh water like. Understood? So this is clear. और यहीं पे बगल में यहाँ पे 30 से लेकर 33 के आसपास है, और यहीं पर ये क्या है? तो पानी किधर से किधर फ्लो करेगा? इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा. Baltic Sea to North Sea. This is North Sea. Baltic Sea to North Sea and North Sea to Baltic Sea. Very good. यही तो आइडिया होना चाहिए. Baltic Sea में क्या है? Salinity is less, the level of water is up, and then North Sea has what is the salinity is more, then level of water will be down. Understood? और इसी की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है? थोड़ा सा fisheries ground. One is the cold water, another meeting of what? Warm. And then there is a formation of what is the fisheries, और ये है एक प्रकार का dogger bank. Which bank? Next one I said that rivers. Which one I said? And the rivers may, if you see that this is in a Black Sea. Which sea is there? Black Sea. And here you can be able to see Don River, Dnieper River, Dniester, and then Danube. Don, Dnieper, Dniester, सब में DD है, and D is silent. So which are the river? I said that if it is in a Black Sea, there is in a which? Don, and then I said that Dnieper, Dniester, and then 10 countries से cross करने वाला which river? Danube. Understood it? And then contributing largest amount of what is in a fresh water. So suppose fresh water कितना मिल रहा है? 100 kg, तो evaporation 30 kg हो रहा है. तो आखिरकार क्या हो रहा है? What is happening? Therefore the net, the fresh water is mixing more, and therefore salinity of the Black Sea is only 18 parts per thousand. What is the salinity of the Black Sea? I said that per thousand. Get you my point? Clear? So इसको पढ़ लेंगे. And melting of glacier से ईस्ट ग्रीनलैंड में आपने क्या देखा था? ग्रीनलैंड के ईस्ट में the salinity has been reduced, and therefore East Greenland current has been formed. What will be the consequences? What will be the causes? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? तो सैलिनिटी 35 से कम हो. यहाँ पे हम लोग यदि जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो क्या क्या होगा?
तुम्हारा पहली बात तो क्लियर क्वेश्चन नहीं है, कैसा, किस पे, क्या, किसने बोला मिनिमम होनी चाहिए? ये तो मैंने बोला कि सैलिनिटी की एवरेज सैलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड इज 35 होनी चाहिए। किसने बोला? ये है, होनी चाहिए तो नहीं बोला मैंने। इट इज व्हाट, दिस इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। और आने वाले 50 मिलियन 100 मिलियन में और बढ़ जाएगा, तो उस समय थोड़ी ना बोलने जाएंगे कि इट शुड बी द होनी चाहिए। एवरेज का मतलब ओवर द पीरियड। रिवर में आज भी क्या होता है, वाटर वेपर कम्स फ्रॉम द ओशन, गोज टू द व्हाट इज लैंड, रेनफॉल एंड देन रिवर, फिर भी आज भी क्या कर रही है, गिविंग व्हाट, सॉल्ट इनटू द ओशन। सो ओवर द पीरियड सैलिनिटी ऑफ द ओशन विल इंक्रीज इन द 50 or 100 मिलियन लाइक दिस। क्या? अब गुड और बैड का तो कुछ नहीं पता है। गुड और बैड क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर है ना, कहाँ पे कैसा रहेगा वो तो। गुड और बैड तो उस समय की सिचुएशन है ना। आज 35 है तो गुड और बैड है क्या? पिछले कुछ साल पहले 34 था तो क्या गुड था या बैड था? इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ओशियानिक सर्कुलेशन, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ज्यादा सैलिनिटी होने से क्या होता है, सॉल्ट ज्यादा होगा तो हीटिंग को एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। जैसे क्लाइमेट में क्या बताते हैं, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, और पार्टिकल्स देखे होंगे तो दिल्ली में मैंने बताया कि दिल्ली में पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स इज मोर, देयरफॉर इट इज एन मोर हीटिंग एंड मोर कोलिजन। तो द वाटर हैविंग मोर सैलिनिटी इट विल बी मोर कंपैरेटिवली वार्मर। तो जब जहां ज्यादा वार्म हो जाएगा वहां से वाटर वेपर ज्यादा उठेगा तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन विल गेट अफेक्टेड, ओशियानिक सर्कुलेशन विल गेट अफेक्टेड। अब सपोज करो कि यहां से गर्म जाता है गल्फ स्ट्रीम और यहाँ पे ठंडा आ जाए, तो ये रीजन कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज होगा। और अभी आपने डे आफ्टर टुमारो फिल्म देखा है, तो सपोज ग्रीनलैंड से बहुत ज्यादा पानी हुआ है, ये हुआ, तो एक तो यहाँ से ऐसे आता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा हुआ तो ये रीजन में लेब्राडोर करंट बहुत ज्यादा ठंडा लेकर आएगा। एंड और एक लेब्राडोर आप लोग बाद में समझेंगे कि एक लेब्राडोर ऐसे ऐसे चलता है साथ में, एक तो ये आपको दबा के चली रहा है गल्फ स्ट्रीम। अब यहाँ पे लेब्राडोर का कोल्ड करंट का ज्यादा मिक्सअप हो गया तो वार्म से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और ये रीजन कैसा हो जाएगा, मोर कोल्डर, तो हाई प्रेशर बन जाएगा ना। कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में एयर क्या बन जाएगा, सो द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज, ओशियन सर्कुलेशन गेट चेंज, और होल वर्ल्ड में कहीं पे आइस एज आने लग जाएगा। जाके एक फिल्म देखो, डे आफ्टर टुमारो, यही चीज उसमें बताया हुआ है कि यहाँ पे कुछ जगहों पे लोगों ने सब जगह क्या लगा रखा है, टेम्परेचर मेजरमेंट का सब कुछ जब है, और उससे आपको क्या चल जाता है। तो जब हाई प्रेशर, एक जगह हाई प्रेशर यहाँ पे कोल्ड हुआ तो दूसरी जगह भी वार्मनेस में अंतर होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाने लगेगा। तो सब जगह एक प्रकार का प्रेशर सिस्टम चेंज, देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन विल गेट चेंज, और फिर उसको मेंटेन करने में वर्ल्ड को कितना समय लगेगा वी डोंट नो। फ्लड, ड्रॉट, सारा कुछ, कहाँ पे क्या क्या रेनफॉल कुछ पता नहीं, और कहीं पे स्नोफॉल, कहीं पे साइक्लोन, कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसे वैसे बनने लग जाएंगे। सब लो प्रेशर सिस्टम ही चेंज होने लग जाएगा। क्या ना, अगला क्या था, पढ़ लिया आप लोगों ने?